Good morning, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, everyone has come. Yes, ma'am. ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, children. Ma'am. Everyone has come. Yes, ma'am. Ma'am. Nice. Yes, ma. Yes, ma. Tell me. मैम Yes. मैम हम अभी अपने लैपटॉप से जुड़ रहे हैं तो आप मीटिंग लॉक मत कीजिएगा, हम जुड़ रहे हैं लैपटॉप से। Okay. Okay. Fine. Fine. Ma'am, part third. 1 second. 1 second. Okay, ma'am. Okay. Now, so in last class, I have explained to you that how that fellow has spent around 4 rupees just like that eating jalebis, and he shared those jalebis to his friends also and their neighborhood. That's what I have told you, and how he was just praying to a god that we are going to see here itself. है ना, यही explain हमने किया था ना, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine, fine. So now, so third part I have to explain you, right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So first, going inside of the topic itself, let me share you some points. Let me tell you some points. Here, remorseful and scared, he prays to God for monetary help. Obviously, पैसों के लिए वो किसको प्रे करने लगा? भगवान को प्रे करने लगा यहाँ पे. Feeling remorseful का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Feeling sorry, okay? He makes matters look normal but prays harder than ever.
तो उसको तो लगा था कि मैटर बहुत ही क्लियर है, सिंपल है, आज मैंने 4 रुपए की जलेबी ले ली है और कल मुझे स्कॉलरशिप के पैसे मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली जलेबी भी हजम हो जाएंगी और स्कॉलरशिप से मैं फीस भी भर दूंगा। दैट इज व्हाट द थिंग हियर इटसेल्फ। उन्होंने ये सोचा था। द इनविटेबल हैपेंस दो समवेयर अलोंग द वे ही नोटिसेस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल। ऑब्वियसली यहाँ पे he notices the, यानी कि यहाँ पे इनवेटेबल का मतलब क्या होता है? अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब होता है inevitable happens though somewhere along the way he notices the divide between the fanciful and the factual। उसको कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट से क्या पता चलता है कि फैंसी यानी कि ड्रीम तो हम कुछ भी ड्रीम कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम सपना किसी का भी देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना भी हम देख सकते हैं, एवरीथिंग। पर फैक्ट में और फैंसी रहने में बहुत ही अंतर होता है बोलकर इस इंसिडेंट से वो बच्चा कहीं ना कहीं सीख जाता है। दैट इज व्हाट द थिंग हियर इटसेल्फ। नेक्स्ट let's read the story. Please open 68 page number everyone. So there was a shade giving tree beside the railway track. I sat under it and wondered whether there could be possible a more unfortunate child than me in this world. Obviously वो एक पेड़ के नीचे बैठा और जो पेड़ था वो कहाँ पे था? रेलवे स्टेशन के जस्ट there it was, and he was just sitting under the tree and he was saying to God how unlucky I am. Okay, now when the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. तो जब ये क्या सोचने लगे कि जब वो कॉइन्स है ना फ्लटर कर रहे थे और साउंड्स कर रहे थे, तो उस टाइम पे तो मैटर बहुत क्लियर था। ऑब्वियसली इट वाज वेरी वेरी क्लियर, राइट? what the matter it was clear, just now I have told you, each jalebis with the fees money and then pay the fee with the scholarship money। तो जब उनके पास पैसे थे तो उनको बहुत सिंपल लग रहा था कि स्कॉलरशिप से मैं फीस भर दूंगा और इससे मैं जलेबी खा लूंगा। That is what I thought, the 2 and 2 added up to 4 and could never be 5। So he understood one thing actually. What it was? That if we add 2 and 2, it never be 5 itself। Okay, मैम क्लियर आवाज नहीं आ रही। तो here जब तक उनके पास जलेबी थी तो बहुत ही खुश था, and he was and the life was so simple for him that if I eat jalebis, definitely with the scholarship money I'll be paying fee itself। Clear? But what happened? I thought that the 2 and 2 added up to 4 and could never be 5। Obviously he has understood one thing, what? That whenever we add 2 plus 2, it always be 4, not 5। Okay, so how was I to know that sometimes it added up to 5 as well? Had I known that I would get the scholarship the next month, I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well. Now for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school। Obviously he was thinking that because of this jalebis I never have to get absentees to the school itself, but because of eating this few jalebis I kept absentees, I was absent to the school also। Okay, so it is a minute crime, but actually because of that minute crime he was not able to go to the school। And the crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station, sitting there under the tree, at first I felt like crying। So when he was sitting under the tree itself, deserted is nothing but empty। Deserted is nothing but empty here itself। Corner of the railway station, sitting there under the tree,
तो रेलवे स्टेशन के जस्ट कॉर्नर में एक ट्री था, और उस ट्री के अंदर है ना, he was just sitting and he was feeling like that to cry a lot. But what happens here itself? See, then I felt like laughing, crying, when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. Obviously, जब वो रो रहे थे, so he was just this is what then I that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. Obviously, that fellow, when he was shedding tears, when he was crying, so he was just thinking that these are not real tears. It was like a syrup of jalebi, it seems. From the jalebis, my thoughts went to the feast, and from feast to Master Ghulam Muhammad's cane, and from his cane, I thought, oh God. I closed my eyes and began to pray. Obviously, when he thought that jalebi syrup, he came to know about the fee itself. And from that feast, he just remembering Ghulam Muhammad's cane. Cane is nothing but a stick. If anybody does any wrong thing, he used to beat like with the cane itself, means with the stick itself. So, and from his cane, and he beat very harshly. He was thinking in his ear, narrator is thinking in his mind itself, but if I go there, if I go to the school without the fees, the sir is going to hit me like anything else. And because of that cane stick, he just closed his eyes and he started praying to the God itself. Clear? Is it clear? Okay. Allah Mia, I am a very good boy. So this fellow, this narrator, he is saying in this way, Allah Mia, I am a very good boy. I have memorized the entire namaz. I even know the last 10 surahs of the Quran by heart. So here he is just here saying, Allah Mia, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और मैंने पूरा कुरान का जो पार्ट है वो और उसमें जितने भी सूरत हैं, सूरत is nothing but चौपाई. It's like in the sense like चौपाई, राइट? वो सब मुझे लर्न है बहुत अच्छे तरीके से. इफ यू विश, अगर तुम चाहते हो, आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ. तो अभी आप अगर चाहते हो तो ऑब्वियसली आई कैन रिसाइट. Your devoted servant is only the fees money that I ate the jalebis with. So all right. So here he is telling that I can, if you want, I can recite those the namaz itself totally. But only the need of your devotee is that please give me that 4 rupees so that I can pay the fees. Okay. I didn't eat them all. So he is telling, I admit. Where am I? Okay. Fees money that I ate the jalebis with. So all right, I admit I made a mistake. तो मैं मानता हूँ कि मैंने mistake किया है. I didn't eat them all by myself. ये कहने लगे कि I didn't eat all by myself. मैंने खुद अकेले खाया नहीं है. I have shared to those people. Though I fed them to a whole lot of children too. Obviously, remaining जो पैसे बचे थे उनसे मैंने जलेबी खरीद कर बच्चों को भी शेयर किए हैं. मैं अकेले alone मैंने नहीं खाया बोलकर बच्चा है ना गॉड से प्रे कर रहा था. ठीक है. नेक्स्ट. बट गिवन नेक्स्ट मंथ आई वुड if I know मुझे अगर पता होता कि मेरे जो स्कॉलरशिप मनी है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने मिलने वाले हैं तो आई wouldn't have done this mistake. मींस मैं ये काम ही नहीं करता. I would neither have eaten them nor fed them to the others. ना मैं खाता और ना ही किसी को खिलाता. That's what he was telling. Now you do one thing. तो भगवान से कह रहे हैं just put 4 rupees in my bag. If there is a पैसा more than 4 rupees, I will be very displeased with you. तो ऑब्वियसली वो छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि अगर आप एक काम करो, 4 रुपए है ना मेरे बैग के अंदर डाल दो. अगर 4 रुपए से भी ज्यादा होंगे, 1 रुपए भी ज्यादा होगा तो मैं आपसे मैं नाराज हो जाऊंगा. That is what he was just putting his words to God itself. I promise if I ever eat sweets with my fees money again. मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा कभी फीस के पैसों से मीठा नहीं खाऊंगा. ओके.
तो देन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इफ आई लेट गो जस्ट लाइक माई प्रॉमिस, यू जस्ट पनिश मी लाइक अ thief itself, यानी कि जैसे चोरों को पनिशमेंट मिलता है ना, उस तरह आप मुझे पनिशमेंट दे देना अगर मैंने गलती की दोबारा तो। दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। तो वो कह रहा है भगवान जी इस एक बार के लिए मुझसे जस्ट हेल्प मी आउट। ही वाज टेलिंग देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन जस्ट इन योर ट्रेजरी। मुझे पता है कि तुम्हारे 4 रुपए अगर आप मुझे दे दोगे तो आपका जो खजाना है, आपका जो ट्रेजरी है वो खत्म नहीं होगा। इवन अवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ। सो ही इज टेलिंग दैट हमारा जो चपरासी है, इवन ही चपरासी इज नथिंग बट हियर इटसेल्फ पियोन। ओके, चपरासी इज हियर इटसेल्फ पियोन। वो जो पियोन है, so the whole lot of money he takes every day, every month he takes, and Allah ji, after all I am the nephew of a big officer। और आपको तो पता है अल्लाह जी कि मैं एक बड़े अफसर का भतीजा हूँ। Won't you give me just 4 rupees? तो क्या आप मुझे 4 रुपए भी नहीं दे सकते हो? That is what the boy is questioning to the God itself. After the prayer, I offered namaz, recited 10 surahs, ayat, al-kursi, khalma, each thayab, in fact everything that I remember। जो भी इनको याद था, जो नमाज के जो पार्ट्स होते हैं, चौपाई होती हैं, वो सब वो बेचारा सुना रहा था। बट देन आई ब्लू ओवर माई बैक सिंग छू। तो ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चे हमने भी देखा है जो मैजिक करते हैं आबराकदाबरा करके और छू मंत्र बोलकर कहने से, जो म्यूजिशियंस होते हैं छू मंत्र कहने से वहां पे है ना मैजिक के जरिए कुछ ना कुछ थिंग है ना वहां पे आ जाता है। तो इन द सेम वे ही वाज आल्सो थिंकिंग दैट इफ आई डू इन दिस वे, इफ आई प्रे टू गॉड, ऑब्वियसली आई विल बी गेटिंग 4 rupees। That is what he has done. Then after saying Bismillah, I realized that what they said was only too true। तो फिर उसके बाद जब वो देखते हैं बैग में, उनको मिलता तो कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने जो भी चीजें होती वो, तो ऑब्वियसली जो इंसिडेंट में होता है वही होता है। ऑब्वियसली जैसे कि जो भी हम सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता। दैट इज ट्रू बोलकर कहीं ना कहीं बच्चे को पता चल जाता है। नो वन कैन एरेज व्हाट फेट हैज डिसाइडेड। ऑब्वियसली जो फेट में होता है वही होता है, ठीक है, इसको है ना कोई मिटा नहीं सकता। दैट्स व्हाट दिस फेलो ही वाज थिंकिंग ऑन दैट टाइम। क्लियर? So forget 4 rupees, there weren't even 4 पैसा in my bag। Obviously after checking, जब ये बच्चा चेक करता है तो वहाँ पे 4 रुपए की तो बात ही छोड़, वहाँ पे 4 पैसे भी नहीं थे। So just a few textbooks and notebooks, 1 pencil, 1 sharpener, 1 ID card my मामू had sent me last ID। Obviously वहाँ पे क्या था देखने के बाद, बैग के अंदर था केवल कुछ नोटबुक्स थे, कुछ टेक्स्ट बुक्स थे, और साथ ही में पेंसिल एंड 1 शार्पनर एंड हिज ID कार्ड। I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home। तो जब ये सोच रहा था कि मैं जोर जोर से चिल्ला कर रहा हूँ, तो उनको तभी दिमाग में आता है कि it was I think my school has been ended and I have to move on with the children itself। So tired and defeated, obviously थका हारा बच्चा, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring। तो ये क्या करता है, वहां से चल देता है और जाकर इंतजार करने लगता है कि कब वो मतलब स्कूल की घंटी बजे। So that when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from the school। तो जब बच्चे बाहर आए तो मैं भी उनके साथ है ना चल दूं, जिससे क्या हो कि किसी कोई नोटिस ना कर पाए कि सब लोग ये कहें कि मैं ये भी स्कूल से ही आया है। That's what। So he just walk on। I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला शॉप। तब ये है ना नोटिस करते हैं कि इनको पता भी नहीं था कि वहां पे जलेबी वाले के शॉप के पास ही खड़ा हुआ है। तो सडनली the हलवाई called out, क्यों भाई, shall I weigh a rupee worth don't want जलेबी today। तो ये जो हलवाई है तो पूछने लगता है कि क्यों भाई, मैं और 1 रुपए की जलेबी पैक कर दूं, should I?
because he knows कि this fellow has spent total whole 4 rupees. So he just asked him. I felt like saying, I won't eat your jalebis today. तो इनको लगा, नरेटर यानी कि बॉय को लगा कि आज मुझे जलेबी खाने का मन नहीं है, लेकिन ये कहना चाह रहा था कि I would sure like to roast your liver and eat that instead. तो इनको कहने का ये मन था कि मैं आज जलेबी नहीं खाऊंगा, जो तुम्हारा लिवर है ना उसको मैं रोस्ट करके आज खाऊंगा. मतलब इतना गुस्सा इसको आ रहा था. But I wasn't feeling too well that day, so I simply moved away. तो ये बहुत ही थका था, बहुत ही निराश था. That's why he didn't even say anything and he just moved on from there onwards. The next day, I did the same thing. I got dressed and left home, went up to the school gate and then turned off to the railway station. तो नेक्स्ट डे क्या करता है, सेम थिंग, सेम कपड़े पहनता है, स्कूल ड्रेस पहनता है और जाता कहाँ है, स्कूल नहीं जाता, स्कूल के बदले वहां पे रेलवे स्टेशन है, वहां पे पहुंच जाता है. सेम थिंग करता है जो पहले के दिन किया था, पहले दिन में किया था. नेक्स्ट, अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगैन टू से द सेम प्रेयर्स. तो फिर से वो नीचे पेड़ के नीचे बैठ जाता है और भगवान को याद करने लगता है. आई रिपीटेडली प्लीडेड, और वो भगवान से रिपीटेडली है ना ये प्रेयर करने लगता है, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, एटलीस्ट आज तो दे दो. टुडे इज द सेकेंड डे. Then I said, all right, come, let's play a game. तो फिर उसके बाद वो कहते हैं चलो इस आज है ना हम एक गेम खेलते हैं. I will go from here to that signal. मैं है ना वहां पे सिग्नल होगा रेलवे स्टेशन के पास, तो मैं सिग्नल तक जाऊंगा और आप है ना हमें मैं सिग्नल तक जाऊंगा और सिग्नल के पास आते ही आप है ना मेरे बैग में पैसे रख देना. हम इस तरीके का गेम खेलेंगे. So what fun it will be if I pick up the rock and find 4 rupees underneath. तो मैं सिग्नल तक है ना रनिंग करते हुए जाऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो आप है ना उस बड़े से पत्थर के नीचे है ना 4 रुपए रख देना. चलो चलो हम ये गेम खेलते हैं बोलकर ये बच्चा है ना भगवान को मनाने लगते हैं. तो आर यू रेडी, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सिग्नल. तो वो कहने लगता है, छोटा सा बच्चा है, ऑब्वियसली ही डजंट नो दैट गॉड इज गोइंग टू हेल्प, बट he was just fine with this thing itself. Okay, so he told to God, so are you ready, I am going towards the signal, 1 2 3. So he counted and he started running there. I went up to the signal and returned. तो ये क्या करता है, सिग्नल तक जाता है, फिर वहां से वापस आता है, smiling but I could not find the courage to pick up the rock. तो स्माइल कर रहा होता है कि हाँ भगवान की जरूर है ना 4 रुपए नीचे रख दिए होंगे, पर इसके पास है ना उतना धैर्य नहीं था कि उस रॉक को उठाकर देखें. What if the coins were not there? तो सोच में पड़ जाता है कि अगर वहां पे कॉइन ना हो तो. But then I thought, what if they were? अगर वहां पे होता तो, अगर है तो. Finally, after saying Bismillah, when I lifted up the rock, this big hairy worm got up. तो जब भगवान का नाम लेकर वो जब रॉक को लिफ्ट करता है तो वहां पे क्या होता है, एक big hairy worm. It was like crawling there itself, curling and twisting, wriggled towards me. I screamed and ran away and once again touched the signal. तो वो जोर से चिल्लाता है और वहां से भागकर फिर सिग्नल को टच करता है. Then crawling on my hands and knees, I reached the tree. After then what happened? He crawled. क्रॉल करते हुए, छोटे बच्चे होते हैं ना तो क्या करते हैं, डर के मारे है ना क्रॉलिंग करते हैं, नीज के बल जो चलते हैं उनको हम क्रॉलिंग कहते हैं. क्रॉल करते हुए he reached to the tree itself. I reached the tree. I tried my best not to let my eyes stray towards the rock. तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं दोबारा नहीं देखूंगा. But as I picked up my back and was about to leave, I had to look once again at the rock. And do you know what I saw there? तो वो सोचता है कि मैं अभी इस पत्थर को कभी पिक नहीं करूंगा. एंड ही वाज जस्ट अबाउट टू मूव, वहां से चलने ही वाला था. और फिर वो ये सोचता है कि अगर व्हाट आई सॉ देयर, अगर एक बार मैं लिफ्ट करूंगा तो शायद. तो आई सॉ मिस्टर वॉर्म, ही वांटेड टू नो व्हाट इट वाज, क्योंकि जो पहली बार ये रॉक को उठाया था तो डर के मारे उठा रहा था और जब भी वो इंसेक्ट देखा और वहां से भागने लगा, यहाँ के अंदर देखा ही नहीं कि पैसे पड़े होंगे. और फिर वो नोटिस करता है, फिर वो है ना दिमाग में लाता है कि कहीं ना कहीं आई थिंक इट विल बी देयर इटसेल्फ. सो आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन comfort every staring at me. तो वो दोबारा कोशिश करने लगता है और सेम थिंग वो करता है
और वहां पे वो देखता है, देखते ही क्या फाइंड आउट करता है, वहां पे मिस्टर वॉर्म वाज क्रोलिंग, यानी कि कॉइल ऑन इट कंफर्ट एवरी स्टेयरिंग एट मी। तो वो वॉर्म भी इसकी तरफ है ना घूर रहा होता है जाते समय। ओके, आई वॉज थिंकिंग टुमारो आई विल डू वजू। तो वहां से वो चल देता है और कहता है कि मैं पक्का कल है ना वजू करूंगा। वजू मीन्स व्हाट? एब्ल्यूशन मीन्स वॉशिंग फेस, हैंड्स एंड फीट बिफोर प्रेइंग। So they wash their hands. Okay, fine, children. So he was just saying that tomorrow I will do waju, wear clean clothes and come here. From morning to noon I will keep reading the namaz. If I even after that Allah doesn't give me 4 rupees, I would be forced to learn how to strike bargains or make deals with him. तो कहते हैं कि मैं सुबह से लेकर दोपहर तक है ना प्रेयर करूंगा, अगर भगवान जी नहीं माने तो मैं उनसे फोर्स करूंगा कि मैं उनसे है ना बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मोल भाव करना सीखूंगा। आफ्टर ऑल इफ माय अल्लाह डज नॉट गिव मी माय 4 rupees then who will? तो ऑब्वियसली वो बच्चा कहता है कि भगवान नहीं देंगे तो और कौन देंगे। That day when I returned home, apparently from school and actually from the railway station, I was caught. The report of my absence had reached home. It's useless to relate what happened after that. तो उसके बाद जब घर पहुंचता है तो उसकी बात होती है ना, वो घर तक किसकी पहुंच जाती है, स्कूल से इंफॉर्मेशन आता है कि past 2 days he was not attending the school itself. तो ये सब बेकार ही होता है उसके लिए नेक्स्ट डे जो करना चाह रहा था। Well, whatever happened, but happened to the 7th or 8th standard, I kept wondering. तो उसके बाद वो मेंशन नहीं करना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली मार पड़ी होगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे वो जब 7th और 8th स्टैंडर्ड में था तो वो है ना दिमाग में ला रहा था, इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 rupees दैट डे, अगर मान लो अल्लाह मियाँ 4 रुपए उस दिन दे देते तो व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली आस्क्ड एनीवन, तो क्या किसका क्या बिगड़ जाता अगर वो 4 रुपया मुझे दे देते। ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना उसको 7th और 8th में घूम रहा होता है, ठीक है। इट वॉज ओनली लेटर, फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर आस्किंग, अगर भगवान जी सब कुछ देने लगे तो हम जो मैन हैं, देन मैन वुड इवन टुडे बी लिविंग इन द नेस्ट लाइक वल्चर्स एंड क्रोस। तो जैसे इंसान अभी अपने हाथों से बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, ये सब शायद ना होता हम भी जैसे यहाँ पे वल्चर्स हैं, यहाँ पे ईगल्स जो है ना अपना बर्ड्स जो है ना नेस्ट बनाकर रह रहे होते हैं ना, सेम ह्यूमन बींग्स भी उसी तरह नेस्ट बनाकर आराम से रह रहे होते हैं, उनको क्रिएटिविटी समझ में नहीं आती। दैट इज व्हाट ही वाज टेलिंग हियर इटसेल्फ। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।